ओके, आई नो कि ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है, कल ही आ चुकी थी न्यूज़, बट मैं वीडियो अब जाके बना रहा हूँ एंड मैं बिना कोई एडिटिंग करने वाला हूँ, इसमें कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्टली वीडियो डाल रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे को पड़ा ही है यार, आई एम नॉट लाइक अदर यूट्यूबर्स भाई। तो एंथनी गॉर्डन टू बार्सा, 70 million is the deal and 10 million is performance based add-ons, so it's good, I guess. Good player because his pressing is good. Yeah, his running is fast, and as a strategy, he recorded a better top speed in the Champions League than Kylian Mbappe the last season. चैम्पियंस लीग में परफॉर्म किया वैसे गॉर्डन ने, क्योंकि आई मीन ही स्कोर्ड 10 goals, 4 goals अगेंस्ट काराबाग एंड क्रेजी, आई मीन, बट प्रीमियर लीग में उसके नंबर्स, गोल्स वाइज ही इज़ नॉट गुड, प्रेसिंग वाइज ही इज़ क्रेजी, ड्रिबलिंग वाइज इज़ क्रेजी, क्रॉसिंग वाइज इज़ गुड, हेडिंग एबिलिटी नहीं है उसमें. सो आई रियली थिंक कि फ्लिक, I think nahi, I know that Flick has not taken him for a number 9 position. He can play number 9 position. He may be a substitute. He may be a option if the number 9 gets injured. So there's a good option that we can play Gordon striker, because many players in Barca are capable of doing that. So it's an option for him, but I don't think he'll be playing at all striker position. If at all he has to play, he can play number 10. He won't be playing number 9. He'll be playing number 10 and a winger position. But I think he has been taken for basically left wing, because I don't think because reports are चुकी है that we are going for Julian Alvarez, and we are going to submit a bid of around 100 to 120 million. भाई कितना पैसा है हमारे पास भाई. I was in the state that Barca is a poor club, but actually I was dumb, because Barca wasn't a poor club. Barca was a club that was held back by La Liga ke regulations, by the 1:4 rule. But now that we have entered 1:1 rule, thanks to Lewandowski ki wages jo ab nahi hogi. Damn bro, 1:1 rule के बाद पहली signing is Anthony Gordon for almost 80 million, and we're still going for a striker, and reports say that we're still going for a defender. Best case scenario यहाँ पे आप सोचो, Bastoni, Gordon and Alvarez. Bastoni की डील ऑफ हो चुकी है, so that's sad, but the same thought we had for Alvarez. मैंने अपने वीडियो में एक बार बोला था कि Alvarez की डील तो ख़त्म हो गई, बट भाई रिवाइव हुआ ना, हो सकता है बस्टोनी की डील भी रिवाइव हो जाए, वी डोंट नो ब्रो. सो द थिंग इज़ भाई, जब मुझको डील के बारे में पता चला, आई वॉज वेरी सैड. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो मेरा रिएक्शन था क्या है ये भाई. दूसरा रिएक्शन था, पहली बात तो एंथनी गॉर्डन को सर्च अप करो. ओके, आई फॉलोड FPL, आई नो एंथनी गॉर्डन, ही इज़ अ गुड विंगर, ही न्यूकासल का बेस्ट प्लेयर है, ठीक है ना भाई. No doubt in that, no doubt. Voltamada, Osula, no one comes close to Anthony Gordon. If you take the best player of Newcastle United, you're already on the right path, bhai. I mean, uski pressing numbers, people are calling him the Rafinha of Premier League. He has the best pressing numbers in Premier League. He has excellent pressing numbers in the Champions League. इसकी ड्रिबलिंग बढ़िया है, सब बढ़िया है इसका, बट द परसेप्शन आई हैड दैट ही वॉज टॉल इज एक्चुअली नॉट ट्रू, बिकॉज ही इज़ ओनली 6 foot. ऊपर से हिज फिजिकल बिल्ड इजंट दैट स्ट्रॉन्ग टू विन एरियल डुअल्स. In fact, he is the one who gives crosses so that strikers can, capitalize on the aerial duels. But the thing is that if we sign Alvarez, aerial duels तो नहीं डाल रहा भाई वो, aerial duels तो नहीं जीत रहा वो. But if we sign Alvarez, एरियल डुअल्स के अलावा सब हो जाएगा. सो दिस ड्रीम साइनिंग इज स्टिल Alvarez भाई. आई डोंट थिंक एनीवन इज इवन क्लोज टू Alvarez. Harry Kane might be close, but he is not coming भाई. If he is coming, I'm not that happy that I would be if Alvarez comes in, because age. So yeah, I mean, damn good, we have gotten Gordon for a very high price, but okay भाई. Flick wanted him, Deco wanted him, Laporta believed in them. It happened. भाई एक तो हमेशा मैंने नोटिस किया है, जो डील्स
इतनी रूमर फैलती रहती है पूरे मार्केट में, ठीक है ना भाई, ये आने वाला वो आने वाला, कोई नहीं आता। वो आता है जिसके बारे में हमको 2-3 घंटे पहले पता चलता है। मतलब बारसा आर वेरी स्ट्रेटेजिकली गुड इन दिस केस। मतलब उनको जो प्लेयर खरीदना होता है ना वो रिवील नहीं होता कभी भी। एंथनी गॉर्डन टू बारसा की लिंक्स का भाई कल दोपहर 4 बजे के आसपास डील डन। बास्टोनी की लिंक्स कब से आ रही है? फेब से आ रही है। डील हुई? बिल्कुल नहीं, ख़त्म ही हो गई डील। एल्वारेज की तो पिछले साल से आ रही है, हुई नहीं, हो ही नहीं रही। निको विलियम्स की इतनी चली, हुई नहीं हुई। भाई बारसा को जो लेना होता है ना वो तुम्हें पता कभी चलेगा ही नहीं, ऐसा है। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि तुम सबको पता चल रहा है कि भाई हम ये लेने वाले, हम ये लेने वाले। और रूनी बर्दागी तुम्हें पता था इतने टाइम से कि वो आने वाला है? हमजा तुम्हें पता था कि वो आने वाला है? नहीं, जस्ट थोड़े टाइम पहले पता चला और वो आ गया। जोआन गार्सिया, ओके ठीक है, वो थोड़े टाइम से हमें पता था कि आ सकता है, बट उसके लिए भी कितना, 1-2 हफ्ता। जो प्लेयर को आना होता है ना वो प्लेयर कभी बारसा रिवील करते ही नहीं है। सो टीम वाइज देयर इज़ नो मोल इन द टीम एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन सेट नहीं होती। बट प्रॉब्लम ये है कि बारसा के फैन बेस इतना एक्सपेक्टेशन सेट कर देते कि हाँ भाई बस्टोनी, हाँ भाई बस्टोनी आएगा भाई हमारे पास। तो जो इतनी बड़ी सेट करते हैं ना, तो बारसा जो अपनी औकात से बाहर जाके भी बस्टोनी के नीचे रहता है वो प्लेयर स्किल वाइज। लेकिन बारसा के लिए एक्सपेक्टेशन इतनी रख देते हैं कि हम वो कितनी भी मेहनत कर ले अपने औकात के हिसाब से बारसा, वो कभी भी बस्टोने लेवल का कोई ला ही नहीं पाते। इसलिए हम अपने आप को बहुत ब्रोक क्लब बोलते हैं, बट असल में हम इतने हैं नहीं करीब। पैसा बहुत है हमारे पास, एक मैच के टिकटों से हमारे पास बहुत पैसा आ जाता है। पैसा बहुत है भाई, पैसा बहुत है। बस प्रॉब्लम ये है कि 4:1 रूल था, अब वो भी हट गया है। तो बारसा तो पागल हो गई कि भाई कहते हम दिखाएंगे इनको आंसर। बायर्न ने क्या बोला? बायर्न ने कि हमारे पास पैसा नहीं है, गरीब क्लब। उनका टॉप टारगेट साइन करो, लो। वो अलग बात है कि वो प्लेयर परफेक्टली फिट करता है फ्लिक के सिस्टम में, बट डैम भाई आई एम हैप्पी गॉर्डन केम। द ओनली थिंग आई एम सैड अबाउट इज दैट रैशफोर्ड वोंट स्टे। I don't think he would stay, bro. And if Rashford stays, I'm more sad because that means Rafinha won't stay. There is absolutely no way in this world, in this universe, that Gordon, Rashford and Rafinha, all three of them are in Barcelona. If they are, कोई खुश मत हो जाना कि अगर हो गए तो भाई ओ वाह बार्सिलोना मास्टर क्लास, कुछ नहीं। अगर हो गए ना तो हमारे पैर पे कुल्हाड़ी लग रही है, क्योंकि इन तीनों का वेज काफ़ी हाई है। उसके बाद भी तीनों एक ही पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, लेफ्ट विंग। क्या तुम चाहते हो रफीना को कहीं और खिलाना? ठीक है चलो, तुम रफीना स्ट्राइकर खिला लिया, हाँ बढ़िया हो गया। अभी भी तुम्हारे पास दो लेफ्ट विंगर्स हैं और दोनों बढ़िया है भाई, वर्ल्ड क्लास ही है दोनों भी। नहीं भाई, कम ऑन। इफ you're signing Alvarez as well and keeping Rashford, keeping Gordon, keeping Rafinha as well, damn bro, I don't think it's gonna be good. So I think Rashford has to go. If Rashford is not going, that means striker isn't coming. So I am very very sad because I was very emotionally linked with Rashford, because मेरे लिए वो प्लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मैं कोच होता ना, मेरे लिए वो प्लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो टीम के लिए मरने को तैयार है। एंड Rashford is that kind of a player. Although he doesn't press that good, he's not fitting into the system that perfectly. But भाई his dream is Barca. His actual dream भाई ड्रीम, मेरी ड्रीम है बारसा। मैं अपने क्लब के लिए करने के लिए कुछ भी रेडी भाई। ड्रीम, if a player's dream is to be in Barca, भाई he will do anything. He will cut his wages. He will do anything to stay. That is what players like Barca becomes legend भाई। मेसी, कते, बुस्केट्स, जावी, नेस्टा, ये सब उनका ड्रीम था बारसा भी खेलने का। They loved Barca and Rashford is a kind of a player. But the problem is that he isn't that good. Although his performances जितना टाइम उसको मिला उसमें उसने ठीक ठाक कर लिया, but भाई I don't think he's that good. If we want to win a Champions League, we can't be having Rashford भाई। I was very connected to him. I really wanted him to stay with us, but मैंने अपने आप को समझाया कि we as a club, we can't focus on what people want to have. We have to focus on what we should have. मैं बहुत दुखी हुआ कि भाई Rashford has to go, because if he doesn't go तो राफीनिया चला जाएगा and I don't want that. and अगर राफीनिया Rashford दोनों रहेगा तो स्ट्राइकर नहीं आएगा, and I also don't want that. so एक डिसअपॉइंटमेंट तो आ रहा है यहाँ पे, and I hope it's Rashford,
बिकॉज दूसरे में तो मैं पगला जाऊँगा, मैं शायद 2-3 दिन किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊँगा. सो या इट्स गॉट टू बी रैशफोर्ड भाई. बट ये वाज वेरी सैड भाई. He gave everything what he had, even though whatever he gave wasn't enough. I mean, I personally thought he could have done better भाई. उसके कितने 1v1 मिसेज है यार. उसके पास कितना चांस होता है बट वो कैपिटलाइज ही नहीं करता. उसके 5-6 वंडर मोमेंट्स उसकी कोर्टवा के अगेंस्ट फिर के हटा दो तो भाई ही इजंट दैट ग्रेट ऑफ अ प्लेयर भाई. रैशफोर्ड इजंट दैट ग्रेट ऑफ अ प्लेयर. इफ यू specifically talk about the 30 million price tag he's in, then we might consider him into a good option. But nah bro, Rashford isn't a Champions League squad में जीतने वाला बंदा यार. Nah bro. Gordon, he fits in the system. Rashford completely opposite to the system, so he has to go. It's very sad. अभी डिफेंडर का तो पता नहीं क्या चल रहा है. बारसा अटैक तो सारे अटैकर्स पे कर रही है, डिफेंडर्स पे तो कुछ कर ही नहीं रही भाई. तो ठीक है भाई. पर्सनली आई थिंक डिफेंस नहीं भी आई ना, इट्स फाइन फॉर मी. आई मीन इट्स नॉट फाइन बट मेरे को इतना अफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज वी हैव जेरार्ड माल्डीनी द गोट.